Hello everyone, this is Rekha Sharma. Welcome to my channel. Today I am going to discuss the difficult or complex conversion of active to passive voice. How to form passives with models, how to form passives with imperative sentences and infinitives, what is quasi passive form, and how to change optative sentences into passive voice. And also we will learn how to fix common errors related to them. So let's start the video. First of all, let me clarify what is an active voice and what is a passive voice and what is the difference between the two. How to identify whether the sentence is in active voice or passive voice. कैसे पता लगे कि ये sentence active voice में है या passive voice में है. So let's try. Who refused them admission? We. Who bought the baby a doll? I. Who was caught? The thief. What has just been posted? The letter. All these four are subject. Okay. जब भी सब्जेक्ट का पता लगाना हो पर्सन के लिए हु से क्वेश्चन पूछिए और थिंग के लिए व्हाट से क्वेश्चन पूछिए. अब हमने ये पता लगाना है कि वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग सम एक्शन और नॉट. इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट इज डूइंग सम एक्शन बिकॉज द सब्जेक्ट रिफ्यूज्ड, सो इट इज एक्टिव. In the second sentence also subject did the action, so it is active. And in the third sentence the subject is not doing any action but receiving action, so this is passive. And the last sentence the subject is again passive, it is not doing any action. So if the subjects are active, those sentences are said to be in active voice, and if the subject is passive, those sentences are said to be in passive voice. I hope the difference between the two is clear. Let's follow some common rules how to change active voice into passive voice. I have already discussed how to change active voice into passive voice, affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences in different tenses in part 1. So if you have not seen the part 1, please do watch it. I'll leave the link in the description box. So let's have an overview. Columbus discovered America. So what is the structure of active voice? Who discovered America? Columbus. This is our subject. Action word is called verb. And what did Columbus discover America? This is our object. तो एक्टिव वॉइस जब भी आप लिखेंगे सेंटेंस आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड देन we write be verb and past participle and then by and then object. So how to make subject, how to make object? Let's see. What is the structure of passive voice? Object of active voice. So what is the object of active voice? America. America will be written in the beginning and it becomes a subject here in the passive voice. So object becomes subjects. It's clear now. America is written in the beginning. Now it has become subject of the passive voice. After that, we have to choose be verb. What is a be verb? Is MR in present tense, was were in past tense, be, being or been. Okay. So because this is past tense, discovered simple past tense, so we have chosen was according to the subject, and then past participle we have used here, and then by, and then the subject of active voice we bring it in the end after by, and here it has become object. So remember, object becomes subject and subject becomes object. Yani object of active voice becomes subject of passive voice and subject of active voice becomes object of passive voice, and in between we make changes. We add be verb plus third form of the verb. Be verbs are very important. Okay. So I hope it is clear. Let's see the second example. I see a dark cloud. Now here tense is changed. This is in present tense. We have to underline. जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करें आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा वर्ब क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. सो ऑब्जेक्ट इज़ अ डार्क क्लाउड. इसको हम पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस में. यहाँ ये सब्जेक्ट का काम करेगा. उसके बाद हम बी वर्ब चूज़ करेंगे. प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर में से चूज़ करेंगे. सिंगुलर के साथ इज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं. तो डार्क क्लाउड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने इज़ लिया है. उसके बाद वी यूज़ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब सी. तो व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सी? सी, सॉ, सीन. पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं. तो हमने सीन लिखा. अ डार्क क्लाउड इज सीन बाय मी. बाय मी क्योंकि बाय प्रपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी. उसी तरीके से ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम.
शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, और इट का ऑब्जेक्ट होता है इट। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर क्लियर कर लीजिए। एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने के लिए टेंसेस का जानना बहुत ज़रूरी है। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म पता होना चाहिए, आपको बी वर्ब्स क्लियर होने चाहिए, देन यू विल बी able to change correctly. Okay, so these are the common rules to be followed. So common rules, the subject becomes object. Now see, this is our subject, this is verb and this is object. So object becomes subject क्योंकि माउस को शुरू में लिखना है हमने, उसके बाद हमने बी वर्ब लगाना है और पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, एंड देन बाय और आफ्टर बाय वी ब्रिंग द सब्जेक्ट हियर, सो इट हैज़ बिकम ऑब्जेक्ट हियर. दैट्स व्हाई आई से ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. So this is a common rule you have to follow. You have to use be verb, they are necessary, they are important, and then third form of the verb. So past participle is common in all tenses, so remember this. ये चेंज नहीं करेंगे आप पैसिव वॉइस में. तो बी वर्ब्स इज एम आर, प्रेजेंट टेंस, वॉज वर पास्ट टेंस, बी बीइंग और बीन वी यूज. बीन इज यूज्ड विथ परफेक्ट टेंस, बीइंग इज यूज्ड विथ प्रोग्रेसिव टेंस, एंड बी इज यूज्ड विथ फ्यूचर टेंस. सो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं. ओके, सो दीज आर द रूल्स यू हैव टू फॉलो. In most cases we use by, but in some particular cases we don't use by, we use certain prepositions according to the verbs. So let's check. Let's see the examples. She knows me, this is an active voice, subject, verb and object. And when we change active voice into passive voice, object comes first, it becomes subject I, and then accordingly, because the tense is present tense, so am, and then the third form or past participle of know is known, and then we use here to. I am known to her. I don't say I am known by her. Okay, here we will not use by. Similarly, in the next sentence, your performance surprised me. Again, subject, verb and object. Okay, bring object first, it becomes I here as a subject. Then because the tense is past tense, so was is used, then past participle is used, and then we use the preposition at, not by. So the sentence is, I was surprised at your performance. I hope it is clear. Now let's come to the important part of video, that is how to change complex conversion of active to passive. And first I am taking modals. What are modals? Some verbs which express mode of action. अगर आपको modals के बारे में क्लैरिटी लानी है तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन मॉडल्स. ओके, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब मॉडल्स होते क्या हैं? मे, कैन, माइट, कुड, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, हैज़ टू, हैव टू, शुड हैव और मस्ट हैव. ओके, so these models express mode of action like asking permission, giving permission, or possibility, ability, or moral obligation, necessity. So different moods are expressed. सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्रेजेंट पैसिव फॉर्म ऑफ मॉडल्स. तो व्हाट इज प्रेजेंट एक्टिव फॉर्म ऑफ मॉडल्स, पहले इसको समझ लें. यू कैन सॉल्व दिस सम, यू सब्जेक्ट हो गया हमारा, कैन सॉल्व ये वर्ब हो गया, दिस सम ऑब्जेक्ट हो गया. तो हाउ इट इज़ प्रेजेंट एक्टिव फॉर्म? क्योंकि यहाँ पर कैन मॉडल यूज़ हुआ है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है. जब हम मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट एक्टिव फॉर्म होता है या एक्टिव वॉइस होता है. अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या क्या चेंजेस करेंगे? हम सिर्फ मॉडल के बाद बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. बाकी सेम पैटर्न, सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में किया. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, दिस सम, और कैन मॉडल, सेम मॉडल. यहाँ पर हम इज एम आर नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिए. जो भी मॉडल वर्ब यूज़ होगा एक्टिव वॉइस में उसी को हम एज इट इज़ लिख लेंगे. उसके बाद हम बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस सम कैन बी सॉल्व बाय यू. नाउ मॉडल्स इन द पास्ट पैसिव फॉर्म. तो पहले पास्ट एक्टिव फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है. राम शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग टुडे. तो राम सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर मॉडल के साथ हैव है, शुड हैव और थर्ड फॉर्म है. ओके, दिस इज पास्ट एक्टिव
वॉइस. सो शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, मीटिंग ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ मॉडल. नाउ हाउ टू चेंज इट इनटू पैसिव फॉर्म. क्या इसमें चेंजेस होंगे? बस बाकी सेम रहेगा. ओनली बी की जगह हम जो है बीन लगा देंगे, BEEN. और हमारा मॉडल वर्ब होगा, हैव के साथ होगा, मस्ट हैव, शुड हैव, माइट हैव. ओके, और वर्ब के उसके साथ हमने बी नहीं लगाना, हमने बीन लगाना है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर टेंस में यूज़ होगी. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. और बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा. द मीटिंग, अब ऑब्जेक्ट पहले ले आए. द मीटिंग शुड हैव बीन अटेंडेड बाय राम टुडे. मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस. वी ऑट टू हेल्प द पुअर एंड नीडी. अब देखिए यहाँ पर हेल्प आपका फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, तो ये हमारा है प्रेजेंट एक्टिव फॉर्म. ओके, प्रेजेंट एक्टिव फॉर्म ऑफ मॉडल. अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑट टू के बाद हम बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? द पुअर एंड नीडी ऑट टू बी हेल्प्ड. यहाँ हम बाय अस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हम वी आर जनरलाइजिंग इट. ओके, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस. So again this is also present active. Okay, and how to change it into passive voice. इसमें भी हम बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. promises should be kept. यहाँ पर हम बाय वन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी जनरलाइज है. उसके बाद यू शुड हैव अलाउड द स्टूडेंट्स टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल. वर्ब्स को जरूर चेक करिए टू नो द सेंटेंस. तो ये हमारा है पास्ट एक्टिव फॉर्म. शुड हैव अलाउड, यहाँ हमने हैव लगा दिया मॉडल के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है. अब इसी तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है. तो हमारा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, इसको पहले लिखेंगे. द स्टूडेंट्स शुड हैव, यहाँ शुड हैव के बाद बी नहीं लगाएंगे, BEEN, बीन लगाएंगे. तो शुड हैव बीन अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम. अगेन ये भी हमारा पास्ट एक्टिव फॉर्म है, फॉर्म ऑफ मॉडल है. तो इसको भी जब चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे. द प्रोजेक्ट मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड इन टाइम. यहाँ पर बाय हिम आप लगा भी सकते हैं बट बिना उसके भी मीनिंग क्लियर हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यू चेक योर आंसर्स. नेक्स्ट, very important, that is imperative sentences. What are imperative sentences? Which express command, order, request, advice, suggestion. Request करना, प्रार्थना करना, कमांड देना, ऑर्डर देना, एडवाइस, सजेशन देना. तो ये सब imperative sentences एक्सप्रेस करते हैं. लेट्स चेक द एग्जाम्पल्स, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. प्लीज़ हेल्प मी, तो ये रिक्वेस्ट है. आप देखिए हेल्प वर्ब रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. वर्क हार्ड और यू विल फेल, ये एडवाइस है. साइन द डॉक्यूमेंट जस्ट नाउ, ये साइन द डॉक्यूमेंट जस्ट नाउ ऑर्डर. लेट्स गो फॉर अ वॉक, सजेशन, सुझाव देना. अब इनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाए? तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ दोज इम्पेरेटिव वर्ब्स विच एक्सप्रेस कमांड एंड ऑर्डर. अब इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, इसको हम दो तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं. पहला फॉर्म है, हमने लेट से शुरू करना है. कमांड और ऑर्डर, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल बिगिन विद लेट इन पैसिव वॉइस. उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लिखना है, देन बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक तो ये तरीका है, दिस इज फर्स्ट वे. देन सेकंड हमारा वे है, यू आर ऑर्डर टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, सो और वी कैन ऑल्सो राइट आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. दिस इज आवर सेकेंड वे. तो दोनों ही हम अप्लाई करते हैं और दोनों का ही डिफरेंस आप देखेंगे. स्विच ऑफ द लाइट, आपने ऑर्डर दिया स्विच ऑफ द लाइट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है लाइट्स. ओके, अब हमने क्या चेंज करना है, हमने लेट से पहले शुरू करना है, लेट. उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लाना है, वो है लाइट्स, लेट द लाइट्स. उसके बाद हमने बी लगाना है, बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ. एक ये तरीका है पैसिव में चेंज करने का. दूसरा तरीका क्या है, यू आर ऑर्डर टू. यहाँ पर हम यू आर ऑर्डर टू से शुरू करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि टू इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. तो टू स्विच ऑफ द लाइट्स. सो दिस इज आवर सेकेंड वे ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. कमांड और ऑर्डर. ओके, more sentences for practice. Iron clothes just now
क्लोथ्स, लेट क्लोथ्स बी आयरन जस्ट नाउ, हम लेट से शुरू कर सकते हैं। ओके, हम यू आर ऑर्डर्ड टू से भी शुरू कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू। ओके, उसी तरीके से कॉल पुलिस, लेट पुलिस बी कॉल्ड, और यू आर ऑर्डर टू कॉल पुलिस। डोंट टच द वायर, लेट द वायर नॉट बी टच्ड, नॉट बी टच्ड। ओके, तो बी से पहले नॉट आ जाएगा। और यू आर ऑर्डर नॉट टू टच वायर। कुक फूड, लेट फूड बी कुक्ड, and you are ordered to cook food. So in that way we can change the commands and order into passive form. So these are the answers, you can tell your answers. And now come to the imperative sentences which express advice or suggestion. जहाँ हम किसी को सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, तो उसको कैसे चेंज करना है। अब जब हम इन सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो हम लेट नहीं लगाएंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुड भी लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस। ओके, रिमेंबर दिस। और सेकंड वे, ये हमारा फर्स्ट वे हो गया। तो व्हाट इज़ द सेकंड वे? सेकंड वे में हम यू आर एडवाइज टू, अब ऑर्डर की जगह हम एडवाइज टू लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ये एडवाइस है, तो इसको हम जब पैसिव में चेंज करेंगे, ट्रैफिक रूल्स ऑब्जेक्ट इसको पहले लिखेंगे, ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड, जनरलाइज हो गया, ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड। और दूसरा तरीका क्या हो गया? यू आर एडवाइज टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ओके, मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। डू योर असाइनमेंट्स नीटली, योर असाइनमेंट्स शुड बी डन नीटली। एक तो फर्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे। उसके बाद वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद यू आर एडवाइज टू डू योर असाइनमेंट्स नीटली। बोथ वेज आर करेक्ट, तो दोनों ही आप अप्लाई करिए। टेक बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, और यू आर एडवाइज टू टेक बैलेंस डाइट। लव एवरीवन शुड बी लव्ड, और यू आर एडवाइज टू लव एवरीवन। रिस्पेक्ट एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, or you are advised to respect elders. So in both ways we can change these imperative sentences into passive voice. Next is how to change imperative sentences which are expressing request. अब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको कैसे चेंज करना है। उसमें हम you are requested to और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। प्लीज़ कंप्लीट माई वर्क, you are requested to complete my work. Okay, so this is the passive form. Please don't close the window, you are requested not to close the window. So to से पहले आप not लगा देंगे. So this is the passive form. Now sentences beginning with let. अब let से जो सेंटेंस imperative सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनको कैसे चेंज करना है। जब उनको हम चेंज करेंगे पैसिव फॉर्म में, अगर वो परमिशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, आस्किंग परमिशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम लेट से शुरू करेंगे, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लगाएंगे, बी लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर वो सजेशन शो कर रहा है, सुझाव शो कर रहा है लेट, तो हमारा पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। इट इज़ सजेस्टेड और इट इज़ प्रपोज दैट, यहाँ इससे शुरू करेंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, और फिर शुड लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। So let's try both the ways how to change request into passive voice. As you see, let me do this work. So he is asking permission कि मुझे अलाउ करो काम करने के लिए, तो यहाँ पर परमिशन शो हो रहा है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। लेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, लेट दिस वर्क। उसके बाद हमने बी लगाना है, बी डन। ओके, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। तो ये सेंटेंस हम इस तरीके से करेंगे, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, दिस इज़ द पैसिव वॉइस। लेट्स गो फॉर अ वॉक, यहाँ पर वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, वो परमिशन, आस्किंग परमिशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, सजेशन एक्सप्रेस कर रहा है, सुझाव एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इट इज़ सजेस्टेड और प्रपोज्ड, इससे शुरू करेंगे दैट। अब यहाँ लेट्स गो, तो अस को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा, वी शुड गो फॉर अ वॉक। ओके, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। Let's practice more sentences. Let me throw the ball. So here let is asking permission. Very simple. Let the ball be thrown by me. Let me do it now. Let it be done by me now. Let us not tease the dog. Suggestion. It is suggested or proposed that we should not tease the dog.
Again, let us enjoy the party. It is suggested or proposed that we should enjoy the party. Okay. So these are the answers you can tally. Now come to next important part, infinitive. Infinitive, एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू गो, टू रीड, टू राइट, टू विन. और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टू रीड क्या हो जाता है, टू बी रेड, बी लग जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है. और टू राइट का क्या हो जाता है, टू बी रिटन. और टू विन का क्या हो जाता है, टू बी वन. ओके. अब आपने देर आर सर्टेन काइंड ऑफ सेंटेंसेज व्हेन वी चेंज दैम, सो वी शुड फॉलो दिस स्ट्रक्चर. अगर हमारा सेंटेंस है माई टीम वॉन्ट्स टू विन द मैच. ओके. सो द स्ट्रक्चर इज माई टीम वॉन्ट्स. तो ये जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ये एज इट इज़ हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे. ये हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद ये वर्ब है. वॉन्ट्स हमारा वर्ब है और माई टीम सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट और वर्ब सेम लिखा जाएगा, जैसे माई टीम वॉन्ट्स. उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट लाएंगे. हमारा ऑब्जेक्ट है मैच. ठीक है. माई टीम वॉन्ट्स द मैच. ओके. नाउ टू विन, और जब टू विन को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टू बी वन, यानी टू के बाद बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. तो हमारा पैसिव फॉर्म क्या होगा, माई टीम वॉन्ट्स द मैच टू बी वन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स टू कुक डिनर. अगेन यहाँ पर शी वॉन्ट्स एज इट इज़ लिखेंगे और ऑब्जेक्ट डिनर को हम पहले लाएंगे. शी वॉन्ट्स डिनर टू बी कुक्ड. ओके. शी वॉन्ट्स डिनर टू बी कुक्ड. तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा. शी वॉन्ट्स टू विन द कॉम्पिटिशन. सो व्हाट इज द पैसिव फॉर्म, शी वॉन्ट्स द कॉम्पिटिशन टू बी वन. ये पैसिव फॉर्म हो गया. आई वॉन्ट टू पे द रेंट दिस मंथ. आई वॉन्ट द रेंट टू बी पेड दिस मंथ. So this is the passive form. Very important part of the video, that is quasi-passive verb form. सबसे पहले quasi, what does it mean? इसका मतलब होता है almost, रियल नहीं, रियलिटी नहीं, नॉट इन रियलिटी, ऑलमोस्ट, लगभग ऐसा, जबकि वो वैसा नहीं होता है. ओके. तो इसमें सम ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं दे आर एक्टिव इन फॉर्म. देखने में तो वो एक्टिव लगते हैं बट पैसिव इन मीनिंग, बट दे गिव पैसिव मीनिंग. और एक्चुअली वो भी पूरी तरीके से नहीं मिलता, हमें सिर्फ लगता है, रियलिटी में नहीं होता. ओके. तो क्वाजाई मीन्स ऑलमोस्ट, इट लुक्स ऑलमोस्ट पैसिव बट एक्टिव इन रियलिटी. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द रोज स्मेल्स स्वीट. व्हाट स्मेल्स स्वीट, रोज. रोज हमारा सब्जेक्ट, स्मेल्स वर्ब और स्वीट हमारा कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव. एडजेक्टिव आप जानते हैं, विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो ये हमारा क्वाजाई पैसिव फॉर्म है. क्यों? देखने में तो ये एक्टिव लग रहा है. द रोज स्मेल्स स्वीट. रोज खुद थोड़ी स्मेल करता है. समबडी स्मेल्स रोज एंड देन ही फाइंड्स द स्मेल स्वीट. इसका मतलब ये हुआ. तो ये देखने में तो एक्टिव लग रहा है, लेकिन पैसिव मीनिंग आ रहा है कि रोज़ जो गुलाब का फूल है उसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत स्वीट होती है. लेकिन ये पूरे तरीके से पैसिव मीनिंग नहीं दे रहा है. अब इसको पूरा पैसिव बनाने के लिए हमने क्या फॉर्मेट यूज़ करना है, स्ट्रक्चर यूज़ करना है. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम बी वर्ब लगाएंगे, यानी इज एम आर, टेंस के अकॉर्डिंग. प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर. उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर हम जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उसको लिखेंगे. जैसे द रोज इज स्मेल्ड स्वीट. एक तो ये तरीका है. दूसरा है हम सब्जेक्ट को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर उसके बाद हम बी वर्ब लगाएंगे, इज़. अब बी वर्ब लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे. ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है. ओके. स्वीट इज़ कॉम्प्लीमेंट नॉट ऑब्जेक्ट. ओके. तो कॉम्प्लीमेंट लेके आएंगे और वो एडजेक्टिव है. तो रोज़ इज़ स्वीट. और उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे व्हेन और इफ़. हम व्हेन भी लिख सकते हैं और इफ़ भी लिख सकते हैं. व्हेन और देन, क्योंकि रोज़ सिंगुलर है तो हम इट लगाएंगे. अगर यहाँ पर प्लूरल होता सब्जेक्ट तो दे लगाते, तो यहाँ इट आएगा. और फिर से हम बी वर्ब लिखेंगे, यानी इज एम आर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. द रोज़ इज़ स्वीट व्हेन इट इज़ स्मेल्ड. तो आप देख लीजिए, आपको दोनों में से जो ईजी वे लगता है आप उसको फॉलो करिए. और मेरी राय में तो दोनों ही आपको आना चाहिए. लेट्स सी द एग्जाम्पल. मैंगोज टेस्ट स्वीट. क्वाज़ाई पैसिव.
अब इसको जब हम दोनों तरीके से चेंज करेंगे तो हमारा पैसिव फॉर्म क्या होगा, मैंगोज आर टेस्टेड स्वीट। एक तो ये तरीका है, दूसरा है मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। अब यहाँ पर इट नहीं लगाया क्योंकि मैंगोज प्लूरल है, तो दे और वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग हमने चूज़ किया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टेंस and you have to be very careful about whether the subject is singular or plural. Accordingly you have to choose. Next is the water feels cold. पानी ठंडा लगता है, पानी खुद थोड़ी टच करता है। somebody feels that water is cold, तो देखने में एक्टिव है लेकिन मीनिंग पैसिव दे रहा है, वो भी पूरा तरीके से नहीं दे रहा, हमें लगता है। तो जब इसको प्रॉपर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द वाटर इज फेल्ट कोल्ड एंड द वाटर इज कोल्ड व्हेन इट इज फेल्ट। ओके, व्हेन it is felt. I hope it is clear. More examples. अब दूसरे तरीके के भी एग्जाम्पल्स होते हैं। द न्यूज़ इज़ प्रिंटिंग, न्यूज़ छप रही है, तो न्यूज़ खुद थोड़ी छप रही है, कोई उसको छाप रहा है, तो एक्टिव लग रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है न्यूज़ एंड इट इज़ डूइंग सम एक्शन, तो ये एक्टिव तो लग रहा है लेकिन ये जो है एक्टिव मीनिंग पैसिव दे रहा है। और जबकि पैसिव वॉइस में तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि यहाँ यूज़ नहीं हुआ है तो हम इसको प्रॉपर पैसिव भी नहीं कहेंगे। तो अब जब हम इसको और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एक्टिव नहीं है भाई, इट इज़ प्रिंटिंग, यानी समबडी इज़ प्रिंटिंग द न्यूज़, तो यहाँ पर रिसीवर है। ओके, तो दैट्स वाई हम, लेकिन प्रॉपर पैसिव फॉर्म नहीं यूज़ हुआ है तो इसको प्रॉपर हम पैसिव भी नहीं कह सकते। तो इसको पैसिव बनाने के लिए हमने सिंपल जो स्ट्रक्चर फॉलो किए हैं डिफरेंट टेंसेस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर इज़ प्रिंटिंग आपका प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस फॉर्म है, तो उसमें हम जो भी बी वर्ब लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लिखेंगे उसी तरीके से हमने चेंज करना है। द न्यूज़, ये इसको हम पहले ही लिखेंगे, द न्यूज़ इज़ बीइंग प्रिंटेड। ओके, सो कंटिन्यूस फॉर्म में इज़ के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म लगता है। द होटल इज़ बिल्डिंग, होटल बन रहा है, इमारत बन रही है, तो देखने में पैसिव मीनिंग देता है और एक्टिव लगता है बट एक्चुअली नहीं है। अगर इसको हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा समबडी इज़ बिल्डिंग द होटल। और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द होटल इज़ बीइंग बिल्ट, क्योंकि उसमें हमें बी वर्ब्स भी लगाने हैं और थर्ड फॉर्म भी लगाने हैं। सो दिस इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दे एक्सप्रेस विश और प्रेयर। ओके, तो मे से शुरू होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड, तो हम इनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एंड हाउ टू चेंज दीज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, हम मे से शुरू करते हैं और बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा जो हमने शुरू में फॉलो किया है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, फिर बी लग जाता है थर्ड फॉर्म, और बाकी बाय और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, सो मे गॉड ब्लेस माई सन, तो माई सन ऑब्जेक्ट हो गया। व्हेन वी चेंज इट वी बिगिन विद मे माई सन ऑब्जेक्ट, मे के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मे माई सन बी ब्लेस्ड बाय गॉड। May India win the match, may the match be won by India. Okay, so these are optative sentences. How to change passive voice into active voice. अभी तक आपने सीखा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। अब हम सीखेंगे कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करें। इसके लिए दोनों का स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, फिर बी वर्ब्स, फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे वापस एक्टिव में चेंज करेंगे। द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड रेड, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मिसिंग लग रहा है पैसिव वॉइस का, नहीं ऑब्जेक्ट मिसिंग लग रहा है। somebody पेंटेड द हाउस, इसका मतलब ये हुआ, तो somebody पेंटेड द हाउस, हम सब्जेक्ट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट लिखना है एक्टिव वॉइस में पहले, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है, तो हम उसको सब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो वी कैन इमेजिन, हम इमेजिन कर सकते हैं। आप दे भी लिख सकते हो, आप somebody भी लिख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ब भी चूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म है तो दे के साथ वर लगता है। अब क्योंकि पैसिव वॉइस में हम बीइंग ऐड करते हैं और थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं, जो कि हम एक्टिव वॉइस में नहीं करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। दे वर पेंटिंग द हाउस रेड। ओके,
शी वॉज प्रेज्ड बाय हर टीचर। अब यहाँ हर टीचर जो है ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगी, इसको पहले लिख लेंगे और वॉज हटा देंगे, बी वर्ब हटा देंगे तो प्रेज बचेगा, हम प्रेज यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद शी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो हो जाएगा हर टीचर प्रेज्ड हर। सो यू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस। नाउ सम कॉमन एरर्स रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कौन कौन सी कॉमन एरर्स होती हैं? सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस, चेस इज़ प्ले बाय बॉयज़। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बी वर्ब के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और यहाँ पर प्ले जो हमारा रेगुलर वर्ब है उसमें ईडी लगाकर हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं, लेकिन मैनी ऑफ यू डोंट ऐड ईडी, ओके, तो इसलिए वो मिस्टेक हो जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस है चेस इज प्लेड बाय बॉयज़। एक तो ये कॉमन एरर है, यू डोंट ऐड ईडी टू द रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लेड हो गया आपका, डिसाइडेड हो गया, तो जिसमें ईडी लगाकर हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो दिस इज़ अ कॉमन एरर मेड बाय यू। एंड देन डिनर हैज़ बीन टेक्ड, यू नो, ये कोई पास्ट पार्टिसिपल है ही नहीं। टेक जो है हमारा इरेगुलर वर्ब है, उसमें हम ईडी नहीं लगाते हैं, ओके। तो क्या थर्ड फॉर्म होगा? टेकन, इसलिए ये गलत हो गया। डिनर हैज़ बीन टेकन इज़ द करेक्ट सेंटेंस। और कॉमन एरर्स हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंगली वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। अ लेटर इज सिंगुलर एंड वी हैव यूज्ड हियर प्लूरल वर्ब, तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हैज़। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हो गई जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। द माउस किल्ड बाय अ कैट, हम पैसिव वॉइस तो बना रहे हैं लेकिन हम बी वर्ब यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ बी वर्ब वॉज ज़रूर आना चाहिए, बिना उसके आपका पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। सो द माउस वॉज किल्ड बाय अ कैट। शी वॉज डाइड, हम ये पैसिव वॉइस नहीं बना सकते बिकॉज शी डाइड इज intransitive verb. Intransitive verbs can't be changed into passive voice. So I hope your doubts are clear and you have followed everything. Thank you so much for watching the video. I will leave links in description box, so do watch them to have more clarity and give your comments and tell me how did you like it. Okay, thank you so much for watching the video.